I need to talk to you. यस रिया, बोलो बच्चे। मॉम, मैं पिछले 3 दिनों से आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ. Do you even know what's happening in my life? I have to choose my stream. I have to take science or like PCM or PCB. But what are you doing? You're literally ignoring me on my face. बच्चे, आई एम लिसनिंग टू यू। पूरा दिन आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो. I understand they are students and I understand that you're a committed teacher. But what about your own kid? आपको कोई टेंशन नहीं है. 3 days, mom, literally 3 days. And it's just a PTM. Stop panicking over it. You know, I just wanted like more than a mother. I wanted a friend in you. I wanted somebody can guide me, a mentor. And what did I get? It's like your job is not just to cook food for me. You have to talk to me. I'm just sick of it. All the kids, you know, उनकी मम्मी उनसे बात करती है, उनके साथ उनकी डिस्कस करती है issues. But my mother, she's a teacher. And like she's busy handling the issues of other kids. What about her own kid? This is not what I expected. I understand that you're a working woman. But what about your responsibilities as a mother? And mom, I really respect the fact that you're working, you're living your dreams. But 2 मिनट, क्या हम 2 मिनट शांति से बात कर सकते हैं? ये मेरे करियर का सवाल है कि मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए. I have no words. It's like every day I come to you and I don't know, you're in this defensive mode जहां बात करना ही नहीं चाहते हो. ऐसे करके आप मुझे बस पीछे कर देते हो. This is not going to work for very long, mom. I need the support of my mother. तो कांट यू सी मैं क्या कर रही हूँ? मम्मा खाली बैठे हैं यहाँ पर। आप हमेशा ऐसे रिएक्ट करते हो। नाराज हो जाओगे कि मम्मा टाइम ही नहीं देती। मम्मा के पास टाइम है, दिख रहा है आपको। मैं कोशिश करती हूँ ना बच्चे, बट वो कोशिश आपको कभी नहीं दिखती। सॉरी, पीटीएम का फ्रस्ट्रेशन आँख पर निकल गया। I'm सॉरी रिया, I'm सॉरी। ओह गॉड, ये पीटीएम की तैयारी करते करते ना मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी। आई नीड अ ब्रेक। घर का भी पूरा काम पड़ा है, अभी बर्तन भी साफ करने हैं, खाना भी बनाना है, और ऊपर से रिया को भी नाराज कर दिया। आई एम गुड फॉर नथिंग। कुछ नहीं कर सकती ढंग का। न मुझसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ संभाली जा रही है, न पर्सनल। स्कूल में सारा दिन बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, ये करो वो मत करो, आपको ये करियर ऑप्शन लेना चाहिए। और आज मेरी बेटी को मेरी जरूरत है तो मैं उसको खुद गाइड नहीं कर पा रही हूँ। कैसी मदर हूं मैं? एक टीचर तो बन गई मैं अच्छी, एक मदर कभी नहीं बन पाऊंगी अच्छी। और वो कभी नहीं समझेगी कि मैं भी चाहती हूँ उसे टाइम देना, मेरा भी मन करता है। कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें, हंसी मजाक करें, घूमें फिरें, बट टाइम तो होना चाहिए उसके लिए। मेरे पास कभी टाइम नहीं होता, न खुद के लिए न बच्चों के लिए। परेशान हो गई हूं मैं। चीजों को बैलेंस करते करते बहुत परेशान हो गई हूं मैं। हाँ, ये टीचिंग ऑप्शन मेरा ही था। Calm down, calm down. Listen, take a deep breath. We have to raise our daughter together. This house is our responsibility, not just your responsibility. So, please don't panic. This behavior scares me. Because you are this beautiful flower I married. And I can't see you battling all these issues silently and alone. Every day you work, you clean, you fold, and you cook. Not just because you do all this, but because you deserve to be loved. Because you made these 2 rooms into what we call home. Oh Manisha,
I couldn't have done anything without you that I have done with you. You keep me sane, you keep me balanced, and hello help me to deal with the pressure. You, young lady, are not just an amazing teacher, but an amazing wife and mother as well. You are my rock. I can count on you in so many ways every single day. You never really ask for appreciation in return. You work selflessly and tirelessly. I get everything served like a king, and I guess I am at fault for this behavior. You are not a slave. You are young, bright, intelligent, and independent woman. Now you do your work. Prepare for the PTM tomorrow. Prepare your documents. And I will wash the dishes. Iron your sari for tomorrow. Talk to Ria. Calm her down. Fine? And you know your daughter. She loves you. It's just that she is a teenager. Otherwise, I and your daughter, both of us understands that you are a working woman. And you have worked hard to reach where you are today. Okay, honey? And yes, don't forget our anniversary tomorrow. Thank you. Thank you so much, yaar. You are always there for me. तुम हमेशा मुझे समझाते हो. Thank you so much. I love you. अरे जल्दी करो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी होता है, कहीं स्कूल पहुंचने में लेट ना हो जाए। अरे हाँ मैं तो तैयार ही हूँ। जाकर अपनी लाडली बेटी को देखो, वो तैयार हुई कि नहीं। उसे टाइम लगता है, ढंग से अखबार भी नहीं पढ़ने देते। प्रेरणा, प्रेरणा, उफ, ये लड़की भी ना, कहीं फिर से इसका डांस वीडियो ना चालू हो गया हो। अभी जाके देखती हूँ। यही कर रही होगी, जल्दी तैयार हो, पापा गुस्सा कर रहे हैं। बस 2 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ। क्या होगा आजकल के बच्चों का, जब देखो फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन सब में ही लगे रहते हैं। अरे गुलिस्ता, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, प्रेरणा को लेकर आ जाना। गाड़ी निकालो तब। आ रहे हैं, बस 2 मिनट। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये स्कूल वाले पीटीएम रखते ही क्यों हैं? पीटीएम रखे वो और डांट खाए हम। भगवान जी, बस आज पापा के डांट से बचा लेना। नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करूंगी। बस इस बार बचा लेना, मैं आपको 2 किलो लड्डू भी चढ़ाऊंगी। प्रेरणा, जल्दी करो बेटा। आ रही हूँ, प्लीज प्लीज भगवान जी। Hello, Mr. and Mrs. Walia. Please have a seat. So, how are you? हेलो मैम। मैम बस पूछिए मत, बहुत ही बुरा हाल है मैम। सारा काम ठप पड़ा है मैम, बहुत ही मुश्किल है। हेलो मैम, मेड आ जाए तो जिंदगी आसान, अदरवाइज यू नो ना। गुड मॉर्निंग मैम। अरे no, I'm talking about your health. हाल चाल कैसा है आपका? अरे मैम वही ना, अगर बिजनेस सही तो सब सही, बिजनेस सही नहीं तो मैम सब खराब। मी डूइंग फाइन मैम, कांता इज कमिंग ना। This is the report card of your child, Prerna. Please have a look. अरे यार, मैम को इतनी भी क्या जल्दी थी रिपोर्ट कार्ड दिखाने की? अच्छे से हालचाल पूछ लेते। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा था, बेकार मार्क्स ही मिले होंगे। मैम आप इसे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए इसकी MBBS क्लियर हो जाएगी? मैम मुझे इसके एंट्रेंस की बहुत चिंता है, आप मुझे बताइए कर लेगी क्लियर? सर देखिए, अभी से मैं क्या कह सकती हूँ, बच्ची अभी सिर्फ 9th क्लास में है और अभी से ये डिसाइड करना कि बच्ची क्या कर सकती है क्या नहीं, ये इस टाइम पे आई थिंक बहुत गलत चीज़ है। मुझे लगता है अभी आपको सिर्फ उसकी करंट परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन कि वो फ्यूचर में क्या कर सकती है हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। साइंस में 43 मार्क्स। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये लड़की MBBS छोड़ो, मुझे तो लग रहा है ये 10th नहीं कर पाएगी। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी मुझे इस लड़की से। और तुमने तो कहा था पापा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा पेपर है, बेकार पता नहीं क्या होगा फिर। मेरा तो मैम मन ही खराब कर दिया इसके रिपोर्ट कार्ड ने।
कितनी उम्मीदें थी हमें इससे कि डॉक्टर बन जाएगी, हमारा भी नाम रोशन होगा, पर इसने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पापा मैं तो पूरा दिन आपके सामने ही पढ़ा था, उस दिन तो फोन भी नहीं चलाया था, फिर भी पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। बस कीजिए ना, यू ऑलवेज स्कॉल माई आइस का तारा। मैं देखती हूँ रिपोर्ट कार्ड, आप तो बस हर चीज में गुस्सा करते रहते हो। वाओ बेटा, इंग्लिश में 70, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थैंक यू मम्मा। मैम, उसके मार्क्स पिछली बार से भी काफ़ी कम आए हैं। प्लीज़ आप लोग उसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैम आप इसे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए हाईएस्ट कितने गए हैं, टॉपर के कितने आए हैं मैम? देखिए सर, हर बच्चा अलग होता है। हम किसी बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, ये गलत है। हर बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है तो कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है। अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम दोनों की क्वालिटीज को नजरअंदाज कर रहे हैं एक तरीके से। तो हमें कभी भी किसी भी बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करना है तो बच्चे की खुद की कैपेबिलिटीज से आपको कंपेयर करना है। हर चीज में कंपैरिजन करते रहते हैं। अरे भाई कंपैरिजन ना करो तो क्या करूं? हम इतनी फीस देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? ये 43 मार्क्स। मैम आपको पता भी है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। आपको क्या करना है? आपको तो यहाँ पे आना है, पढ़ाना और चले जाना है। कमर तो हमें तोड़नी पड़ती है और फिर कहते हैं लोग कंपैरिजन करते हैं। तभी इनकी कमर दुखती रहती है। बट मैम, ये कह तो सही रहे हैं, आपको मेरी बेटी पे स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, वरना आजकल की जनरेशन तो बस सोशल मीडिया पे लगी रहती है। मम्मा इट्स न्यू ट्रेंड, आपको क्या पता। अरे बेटा कभी पढ़ने का ट्रेंड भी फॉलो कर लिया करो, सारा दिन सोशल मीडिया। तो बच्चे से ही पूछ लेते हैं, आर यू हैप्पी विद योर रिजल्ट प्रेरणा? नो मैम, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई मार्क्स। मैंने तो कितनी मेहनत करी थी, एग्जाम के एक दिन पहले जगकर सारा याद किया था, लेकिन जो याद किया था वो तो आया ही नहीं, कुछ और ही आ गया। तो फिर बेटा साल भर तो आपने ऐसी ही मस्ती में निकाल दिया। अब लास्ट में पढ़ने से थोड़ी ना मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, थोड़ी ना आप टॉप कर जाओगे। बताओ सच बोल रहे हो या नहीं? हाँ सही है या नहीं? तो फिर मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती आई हूँ कि मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, जैसे आप हो वैसे ही बाकी सब हैं। लेकिन आप कभी आए मेरे पास पूछने? मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कम टू मी, प्लीज आस्क मी। आप कभी आए कि मैडम मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप एक बार समझा दीजिए? नहीं। बताओ क्यों नहीं आए मेरे पास? नो मैम, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर डाउट कैसा? आना चाहिए ना आपको, नेक्स्ट टाइम से आओगे ना पक्का? तो बताओ बच्चे, किसका लॉस हुआ है यहाँ पर? आप ही का हो रहा है ना? तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज कभी भी आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज कम टू मी एंड आस्क मी कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया है। बच्चे मैं आपको 2-2 बार समझाऊंगी, ठीक है? और हाँ, कंपैरिजन हमेशा खुद से करना, ना कि दूसरे बच्चों से कि उसके तो ज्यादा मार्क्स आ गए, अरे उसके तो मेरे से कम हैं। नहीं, हमेशा खुद से कंपैरिजन करो। आपके पहले बहुत अच्छे मार्क्स थे, अभी आपके थोड़े डाउन हो गए हैं, तो आपको ये देखना है कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों मेरे मार्क्स कम हुए इस बार। मैं वो गलतियां नहीं रिपीट करूंगी जो मैंने इस बार की हैं, ठीक है? यस मैम। मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपने बहुत अच्छा पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्लास में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से आगे भी परफॉर्म करोगे और जो गलतियां आपने इस बार की हैं वो आप रिपीट नहीं करोगे। ओके मैम, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट। प्लीज मैम इधर सिग्नेचर कर दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।